चलते हैं। Good morning, friends from the media. I would like to formally welcome you to this press conference by the Election Commission on forthcoming assembly polls to the 5 states of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. I have with me the Honorable Chief Election Commissioner Shri Rajiv Kumar ji, the Honorable Election Commissioner Shri Anup Chandra Pandey ji, and the Honorable Election Commissioner Shri Arun Goyal ji. We also have with us today senior officials from the ECI headquarters. I am B. Narayanan, DG Media for the Commission. The format is as follows. There will be opening remarks by the CEC along with presentation. We will share the PDF copy of the presentation with all of you after the event is over. Following this, there will be a brief question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for the chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization and then ask your questions. Please keep your mobiles on silent mode. Sir, I request you to deliver your opening remarks. My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my right side and Shri Arun Goyal ji on my left, ECI officials and friends from media in such a large number. Very good morning to you. I hope you had a good weekend. You were all worried that the conference may happen during weekend. So I hope you had a good weekend. And it's a good starting on Monday. Friends, as you are aware, we have gathered here today to declare the schedule for the elections to the legislative assemblies of Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana. And we have gathered here today after a significant hiatus of 6 months. We met last. And as we stand on the cusp of elections in these states, it is worth noting that these polls hold a unique significance, not only for the residents of these states, but also for the nation. We will now, after this, meet in this form for the 24 elections. In the span of 40 days, the Commission has visited 5 states, all the 5 states, and held very detailed discussions with the political parties there, with the enforcement agencies of the central government and the state government. For example, all across the spectrum, to just tell you, income tax, excise, DRI, narcotics, coastal guards, state police, banks, RBI, civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए. उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा. I'll use this opportunity to brief you about what had happened during these last 6 months when we have started the preparation for the elections. मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है. So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 है. और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली, वो भी लगभग 95 करोड़ वोटर्स के 1/6 हैं.
So the entire country, by that standard, would be going to polls in almost in the 1/6 of the country's spread of the voters and the assembly constituencies. The general overview, if we were to give you, the Mizoram has 8.52 lakh voters, Chhattisgarh 2.03, Madhya Pradesh 5.6, Rajasthan 5.2, Telangana 3.17, and total voters in these states would be totaling to 8.2 crore male and 7.8 crore female voters. Very interesting fact is that first time voters in these states would be 60.2 lakhs. I would elaborate on this point little later when I come to that. But this emphasis during the special summary revision in these states has been such that we have concentrated on the enrollment of the young voters, PWD voters, 80+ voters, centenarian voters, and also the improving the election gender ratio for these states. अगर आप देखेंगे तो जो PWD हैं उसके total voters की संख्या 17.34 lakhs है, which is who are also entitled to vote from the comfort of their home if they are not able to come to the polling station. Similarly, 80+ 24.7 and centenarian voters 32,410. All these three categories को पहली बार असेंबली इलेक्शंस में अपने घर से वोट की सुविधा प्राप्त होगी. और फ्रेंड्स, द लास्ट कॉलम अगर आप देखेंगे इलेक्टर जेंडर रेशियो, तो दो स्टेट में ये जेंडर रेशियो ज़्यादा फेवरेबल है विमेन का. इट इज़ 1063 एंड 1012, विच इज़ अ वेरी हैप्पी स्टेट. इन अदर स्टेट्स ऑल्सो it has improved because of the special efforts undertaking during the SSR. और इस SSR की वजह से इन सब में भी ये electoral ratio काफ़ी बड़ा है. तेलंगाना is also very high, 9998, and so there is improvement even in the Rajasthan. Now, if you look at the inclusive electoral roll, we are emphasizing a lot. Let me repeat. जो इलेक्ट्रल रोल है वो पूरी तरीके से प्योर हो, वो पूरी तरीके से हेल्दी हो, इसके ऊपर में बहुत एम्फेसिस है. और ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा कि जो एसएसआर पूरी कंट्री का है वो भी शुरू होने वाला है. सो जस्ट टू से दैट वुमेन वोटर्स, यंग वोटर्स, particularly vulnerable tribal groups, persons with disabilities, senior citizens, transgenders, सबके ऊपर में इस एसएसआर में जो इन 5 स्टेट्स में हुआ विशेष अभियान चलाया गया, ताकि पूरा का पूरा जो इलेक्टरल रूल है उसमें पहले सबको शामिल करें और फिर सबको हम वोटर पोलिंग स्टेशन पे लेके आएं. सो दिस इज द एफर्ट. हाउ डू वी फर्स्ट एंटर देम इनटू द रोल एंड देन ब्रिंग देम टू द पोल. सो फ्रॉम रोल टू पोल is the emphasis by which we are all working. So now, friends, very interesting and a special effort which the commission is undertaking. ये जो particularly vulnerable tribal groups हैं पूरी कंट्री में 75 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, और कमीशन ने ये बीड़ा उठाया है कि हम इनको सबको जो लास्ट पंक्ति में हैं, दे आर ऑलमोस्ट द लोएस्ट इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसेस इन द एंटायर कंट्री इन द अमंग्स द वोटर्स. So we will enroll them fully. And as a happy reporting to you, in these 4 states we have 12 PVTGs and they have been enrolled 100%. तो ये हमें बड़ी खुशी का विषय है कि 100% एनरोल हुई हैं, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इनको किस प्रकार से हम पोलिंग स्टेशंस में लाने की कोशिश करेंगे. अगर यूथ की बात करें तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 ईयर्स इन दीज 5 स्टेट्स. तो 60 लाख जो यूथ हैं वो ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे 18 to 19 ईयर्स इन दीज 5 स्टेट्स. एंड एज यू आर ऑल अवेयर, देयर वाज एन अमेंडमेंट फॉर क्वालिफाइंग डेट्स टू बी चेंज टू 4 dates इंस्टेड ऑफ द 1st जनवरी ऑफ द एवरी ईयर. So उसकी वजह से 15.39 lakh voters are such who are completing their 18th year after the 1st January 2023. And because of this amendment, 15.3 lakh voters would be able to exercise their franchise in this election. This is the positive effect and of that
amendment which we brought, and in line of that, we are also taking up to showcase that these 2,900 plus polling stations would be managed by our youngest employees, so that we also focus on and tackle the youth apathy which we keep encountering in states after states. Similarly, if we come to women, as I mentioned earlier, women का जो gender ratio है वो भी लगातार improve हो रहा है. So Chhattisgarh has improved from 995 to 1012. For Madhya Pradesh from 917 to a jump of 945. Mizoram again from 1051 to 1063 gender ratio. And Rajasthan and also Telangana from 982 to 998. And net addition of the female electors, which is also a very happy state for us, is 23.6 lakhs. तो अब एफर्ट ये है कि उनको पहले हमने पोल में जोड़ दिया और अब हम उनको पोलिंग स्टेशंस पर लेके आए by providing them all kinds of facilities which are possible. How do we do that? So if you look at the inclusive and pure nature of the electoral roll, since the efforts we are making after the second SSR which happened in these 5 going states, 57.89 lakhs is the total addition, and this happened. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs, and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस. ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी. These are being put on the media's website and all. So you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side, and it will be posted also in our website immediately. Next. Before coming to the overview of polling stations, friends, through you, let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरा सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें. कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है, या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें. किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं. घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे would be undertaken by BLOs from 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO or through the voter helpline BHA application. You can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states, and of which 1.01 would have webcasting facility. We have prescribed 50% webcasting, and with a liberty to the states on the basis of vulnerabilities to increase it on their own. So this would be close to 1.01 lakh. Then all this would be monitored through the control rooms, and the number of women managed polling stations there would be 17,734 polling stations which will be model polling stations. There would be PWD managed polling stations, 621, and women managed would be 8,192, more than one in most of the constituencies. Coming to the assured minimum facilities, every polling station would have toilet, drinking water, ramp, light, help desk, signage. सभी polling stations पे सुविधा होगी, और प्रयास यह है कि पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें,
शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू दी मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड, and entire we showcase and we put an example before the society that yes, at the polling station, when we can do this respect and the separate treatment for them which is their due, why can't we do it elsewhere in the society? So this is our modest effort to bring this fact into the limelight. Coming to the elderly voters, as you know, in all these states also, they will have the facility to vote from their home. फॉर्म 12D 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं. सिमिलरली नेक्स्ट, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है स्लाइड जो आपको दिखाना था. बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहां पर हम लोग अंदर जा रहे हैं ताकि हर वोटर के पास पहुंच सकें. अगर आप फर्स्ट स्लाइड देखेंगे, ये फर्स्ट टाइम पोलिंग स्टेशन है. 8 किलोमीटर इससे बचेगा चलना. जगदलपुर, बस्तर, छत्तीसगढ़, दिस इज दोज एरियाज. सिमिलरली इन राजस्थान, दिस इज ऑल्सो न्यू बूथ. तो एक स्पेशल कोशिश है कि जो लोग को कम से कम चलना पड़े. वैसे भी हमारा नियम है कि 2 किलोमीटर के अंदर में हम देंगे, बट जहां पॉसिबल नहीं था वहां भी हम भर रहे हैं. इसी प्रकार से जो हमारे, मैंने आपको बताया था, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी हम स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना रहे हैं. बफर जोन ऑफ फैन के अंदर में ये पोलिंग स्टेशन होगा, जो कि मांडला एमपी में, जस्ट दी शोकेसिंग. और अगर आप नेक्स्ट वाला देखें, पिपरिया डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा एमपी, इसमें 165 kilometers from district headquarters, tribal dominated district. People will go, and this is the kind of rivers and all terrain they will cross. This is in Mizoram, 22 non-motorable polling stations. तो ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा है कि जो पोलिंग पर्सनल हैं वो कितनी मेहनत से, कितनी दूर में अपना ड्यूटी करने जाते हैं. और 6 महीने की तैयारी सिर्फ इसीलिए है जिससे कि सबको सुविधाएं मिल जाएं. और इसीलिए आई विल लाइक टू अपील थ्रू यू टू ऑल दी वोटर्स ऑफ दीज 5 स्टेट्स कि अगर हमने इतनी मेहनत की है तो आप भी कम से कम वोट देने के लिए जरूर आएं. स्पेशल रिक्वेस्ट टू यूथ, विमेन एंड दी पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज, दोज वेयर वी सी ए लिटिल एपैथी. फ्रेंड्स, आपको पहले भी ये बताया है हमने कि सी विजिल के माध्यम से कोई भी शिकायत कर सकता है किसी भी तरीके की इंड्यूसमेंट की, और जिसके पास हम 100 मिनट में पहुंचेंगे. और इसका प्रयोग में रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस में हमें काफी शिकायतें मिली हैं और इंड्यूसमेंट रोकने में भी मदद मिली है. नो योर कैंडिडेट्स, ये हम हर स्टेट में दिखा चुके हैं कि किसी की भी अगर आपराधिक पृष्ठभूमि है तो उस आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट को अपने बारे में 3 बार न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा, और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को भी आगे बढ़ के ये लिखना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसे कैंडिडेट को क्यों चुना, क्या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के कैंडिडेट चुने गए हैं उनके अतिरिक्त कोई और उपलब्ध नहीं था. वंस दे गिव दिस इंफॉर्मेशन, इट इज फॉर द वोटर टू डिसाइड on the basis of an informed choice as to what he wants to do. Another new initiative we have taken is on the integrated election expenditure monitoring. कुछ समय पहले, और इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हम सोचते हैं हमें मिलेंगे, और ये एक ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए नया इनिशिएटिव है, जिसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 31 अक्टूबर तक कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट देनी होती है कि उन्हें कहां से कितने पैसे मिले, और उसी के बेसिस पे उनको इनकम टैक्स की छूट मिलती है. तो पीछे देखने में आया था कि इसके बारे में कुछ सूचनाएं समय पर भी नहीं आती थी, और कुछ ऐसे केस भी थे जिसमें छूट नहीं वाजिब होने के बाद भी ले ली गई थी. तो इन सभी चीजों को भरने के लिए, कंप्लीट करने के लिए नाउ न्यू IT सिस्टम हैज बीन स्टार्टेड, एंड इन विच द कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट विच इज ड्यू ऑफ एवरी ईयर बाय 31 अक्टूबर वुड हैव टू बी फिल्ड. सिमिलरली एनुअल ऑडिट रिपोर्ट्स पॉलिटिकल पार्टीज को अब इसी IT टूल्स में डिजिटल मोड में देनी पड़ेंगे.
और एक और रिपोर्ट उन्हें देनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज को आफ्टर एवरी इलेक्शन, जिसमें वो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर देनी होती है जैसे ही चुनाव खत्म हो, और 75 डेज के अंदर में फाइनल रिपोर्ट, ताकि उस इलेक्शन में कितना खर्चा पॉलिटिकल पार्टी ने किया। तो अब हमारे पास किस कैंडिडेट ने कितना खर्चा किया ये तो होगा, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू ये भी होगा। दिस विल हेल्प इन ease for the political parties to fill up these details online, and would also help us in keeping it at one place and do whatever assessment and analytics is possible in addition to housekeeping. Similarly, जो इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस का फोकस चुनाव आयोग और गंभीरता के साथ दे रहा है, उसके लिए भी एक इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम इस बार नया शुरू किया जा रहा है इन 5 असेंबली इलेक्शंस में। व्हाट इज दिस? जितनी भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, हम सबको कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग डायरेक्शंस देते हैं, जो मैं इसके तुरंत बाद आपको दिखाऊंगा बिफोर कमिंग टू द शेड्यूल, कि आप जो भी सीजर कर रहे हैं उसको भरिए, डोंट वर्क इन साइलोज, work in a coordinated manner, but it doesn't get coordinated often. So this system will give an access, will onboard all the central and state enforcement agencies during the election period, and they will have to report as soon as any action they take. And if they don't fill up, it will also tell us that for so long no action has been taken by a particular agency. This will also help us in compiling, do the trend analysis, do various kinds of things possible in that particular state. और आप सब अवगत हैं कि हर स्टेट के बहुत सारे स्टेट स्पेसिफिक इंड्यूसमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं। अगर मिजोरम में इंटरनेशनल बॉर्डर है तो राजस्थान में भी वही इशू है, तो कहीं पर इंटर स्टेट ड्रग्स की प्रॉब्लम है, तो कहीं पर एक्सेस कैश और मनी पावर की प्रॉब्लम है। All that with the help of the respective enforcement agencies would get collated, and we hope would also get analyzed on a far more real-time basis, so that we can take corrective actions and we can nudge them or we can appreciate them. In this reference, we have got some check post established, which is in Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Telangana, in all 940 check posts. These 940 check posts belong to different enforcement agencies, which is namely, by and large, police, state police, excise, commercial taxes, forest and transport. तो इन सब पांचों की जो पावर्स हैं वो अपने अपने एक्ट के अंदर में अलग अलग पावर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव डायरेक्टेड देम टू डू ए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, पूल देयर रिसोर्सेज, एस्टैब्लिश सिनर्जीज। पांचों एक साथ मिलकर काम करें, और क्या काम करें? इन 940 प्लस चेक पोस्ट पर इंटरस्टेट बॉर्डर्स में दे विल कीप ए वेरी स्ट्रॉन्ग वॉच, and we have almost told them to dry up inflow of cash, liquor and drugs. आपको जब पिछले कर्नाटका इलेक्शन हुआ तो वहां जाने के बाद जब हम रिव्यू करके आए तो जो 2018 का सीजर था वो एमसीसी अनाउंस होने तक उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कर दिया था। सो दिस इज ए रिन्यूड फोकस, एंड ऑल दी चेकिंग ऑफ कार्गो मूवमेंट थ्रू नॉन शेड्यूल्ड चार्टर्ड फ्लाइट्स, this we will issue the guidelines also in greater detail. ऐसी संभावना होती है कि जो पैसेंजर्स के अलावा कार्गो मूवमेंट्स है उसमें भी कुछ ना कुछ इन पोल बाउंड स्टेट्स में कोई मटेरियल इंड्यूसमेंट के थ्रू जा सकता है। कार्गो के पार्सल्स का रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू भी चेकिंग शुरू हो। मनी पावर, ऑल दीज एजेंसीज हैव बीन स्ट्रिक्टली आस्क्ड टू कीप strict vigil and report in the system which we have stated just before this. Number of observers will be deputed, the general observers, police observers and the expenditure observers, and adequate CAPF. Similarly, the directions again
At the polling stations, wherever necessary, we'll keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे उस तरह की घटना ना हो। यह भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been changed now. ये इसलिए कि बहुत सारे पोलिंग पर्सनल्स कुछ स्टेट में कंबाइन होके पोस्ट पोल अपनी कोई न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते हैं, बिकॉज मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, तो अगर 100, 200, 400 लोग भी मिल जाएं तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. सो दिस कुड बी ए पोस्ट पोल opportunity for some to influence the voters or influence the results. Therefore, all of them now onwards in all the elections will vote only at the facilitation center when they come for training. This is before, so this will be physically collected and the postal ballot facility is available in the same sense but at the facilitation center. Next. Now coming to friends, after mentioning that we are focusing far more on the inducement free elections because money power is one thing which we want to restrict, we now will come to the schedule which you are awaiting state by state, and now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. Thank you for those detailed remarks, sir. Just hold on. Floor is open for questions. Don't stand up, just keep sitting and just put up your hands and I'll direct the mic to come to you. ये पांचों स्लाइड्स की डेट वैसे अभी आपको भेज दिया होगा. It's being tweeted to you. It's being tweeted, but हम दोबारा रिपीट कर दीजिए. Yeah. मिजोरम, visible to all. Next. Madhya Pradesh, date of poll 17th November
Rajasthan 23rd November and Telangana 30th November. We are doing counting on 3rd of December. बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान कर दिया गया है, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। 7 नवंबर से वोटिंग का प्रोसेस शुरू होगा। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ में भी 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा। 2 फेज में चुनाव होगा छत्तीसगढ़ में। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में चुनाव होना है, राजस्थान में भी वोटिंग होनी है और तेलंगाना में भी वोटिंग होनी है। और इन सब का जो चुनाव का परिणाम है वो 3 दिसंबर को आएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं उनकी घोषणा की गई है चुनाव आयोग की तरफ से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पांच राज्यों में चुनाव होना है और 5 राज्यों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी, मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी और मतगणना 3 दिसंबर को। सभी राज्यों में मतगणना 3 दिसंबर को होनी है। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होगा, 7 नवंबर और 17 नवंबर को चुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसमें विस्तार से बताया गया कि किस तरह से चुनाव की तैयारियों में वो जुटे हुए थे पिछले 6 महीनों से और वोटर लिस्ट उन्होंने तैयार की है और अब चुनाव की लगभग सभी तैयारियां कर ली गई हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होगा और ये महत्वपूर्ण राज्य हैं। इनमें अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। तेलंगाना में बीआरएस की सरकार है। मिजोरम में मिजोरम फ्रंट की सरकार है। ऐसे में इसे 24 का सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होंगे उन पर भी इन चुनावों का असर देखने को मिल सकता है। और जो सियासी समीकरण बनाने की कोशिशों में राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, इन राज्यों में चुनाव परिणाम सामने आने के बाद उनका भी स्थिति जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि कितना दम किस दल में, किस गठबंधन में है। और तमाम राजनीतिक दल फिर 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। हालांकि अभी से तैयारियां लोकसभा चुनाव की चल रही हैं, लेकिन इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव से ठीक पहले होने हैं, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव और 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम होगा वो काफी हद तक प्रभावित करेगा लोकसभा चुनाव को। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के लिए चुनाव का शेड्यूल जो है वो घोषित कर दिया गया है। ये चुनाव का शेड्यूल है जो घोषित किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। इन 5 राज्यों में महत्वपूर्ण चुनाव जो होने हैं लोकसभा चुनाव से पहले, उसके लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए 23 नवंबर को मतदान होगा। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 3 दिसंबर को ही होगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे 17 नवंबर को। जो उसको इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए आवश्यक है वो उस तक पहुंचाएं। फेज 1, फेज 2 इन ऑल द इलेक्शंस दैट विल बी डन और उसके लिए व्यापक व्यवस्था की गई है। इसलिए हमें सबको अपील है कि वो सब वोट देने आए और जो जहां भी जितनी भी सुविधाएं और जितनी भी सुरक्षा देने का जरूरत है वो असेसमेंट करके उतनी वहां प्रोवाइड की जाएगी। कैश और फ्रीबीज, ड्रग्स, लीकर, कंज्यूमेबल गुड्स, ये मेनेस है। हम लोग उसके प्रति पूरी तरीके से सजग हैं। जस्ट गिव यू ए स्मॉल फिगर, जो अभी पीछे 6 इलेक्शंस हुए हैं उसमें अगर मैं आपको अलग से भी दिलवा दूंगा, लेकिन
लगातार उनमें वृद्धि का जो प्रतिशत है, इन सम स्टेट्स इट इज अप टू 6,000%, बट इन ओवरेज इट इज, मैं बताता ही हूं आपको एग्जैक्ट। Karnataka was 83 crores in 2017. First, I will speak the last election figure, then the recent. 83, which has increased to 384 crores. Tripura was 1.79 crores, increased to 45 crores. और त्रिपुरा में violence, you all remember, 0, repoll 0, and this was the kind of improvement in the seizures. So what we are trying to do is to improve the overall environment of elections, be it violence, be it freebies, be it the ease of voting for the thing, be it the improvement in the human face of the entire electoral roll, transgenders, PBTGs. So it's an overall qualitative change in the electoral roll. चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है चुनावों को लेकर के, और मिजोरम में 7 नवंबर से वोटिंग होगी, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 2 फेज में चुनाव होना है, 7 और 17 नवंबर को वोटिंग होगी, राजस्थान में 23 नवंबर को, तो तेलंगाना में 30 नवंबर को। तो चुनाव आयोग की तरफ से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और अपनी तैयारियों के बारे में भी चुनाव आयुक्त बता रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और पिछले जो चुनाव हुए उसमें जो भी अनुभव किया उसके हिसाब से तैयारी इस बार की गई है, ताकि पूरी तरह से स्पष्ट जो चुनाव हो, स्वच्छ तरीके से चुनाव हो, और किसी भी तरह का मनी पावर का इस्तेमाल ना हो। इस तरह की तमाम जो सावधानियां बरतनी हैं उनको लेकर के भी बातचीत करते हुए नजर आए चुनाव आयुक्त। और इसके अलावा उन्होंने सभी युवाओं से और महिलाओं से खासतौर पर वोटिंग के लिए आने की अपील की है। राजेंद्र जादौन हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजेंद्र जादौन जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी राजेंद्र जादौन जी, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को, जो अब इनका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से? आप देखिए, ऐसा है कि पहले जो है जिस तरह का बयान सरकार के स्तर से आया और फिर कमेटी का भी गठन कर दिया गया पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में, 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला मुद्दा, तो सबको ये था, ये कयास थे कि हो सकता है सरकार ये फैसला करे कि लोकसभा चुनाव के साथ ही सब बाकी तमाम विधानसभाओं के चुनाव करवाए जाएं जो ड्यू है। लेकिन ये है कि ठीक है, अब चुनाव आयोग ने अपने तरीके से घोषणा कर दी है, जो भी उनका शेड्यूल था उसके हिसाब से, और ये 5 राज्यों में चुनाव ड्यू थे, तो ड्यू चुनाव के लिए उन्होंने तिथियां घोषित कर दी हैं। लेकिन अब इन चुनावों के लिए माहौल तो पहले से ही बहुत गरमाया हुआ है। प्रधानमंत्री के भी दौरे हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, और उधर जो है कांग्रेस भी अपनी तैयारी में जुटी हुई है। तेलंगाना के लिए अलग तरह का उन्होंने घोषणा पत्र जारी कर दिया, उसमें कई तरह की रियायतें और फ्रीवीज का जो है मुद्दा लेके आए। तो अब ये है कि सब अपने अपने तरीके से ताकत लगा रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन भी का भी गठन हो गया है। अब देखते हैं कि उनके बीच में क्या फॉर्मूला आता है, किस तरह से सीटों का बंटवारा होता है, क्योंकि अभी तो एकजुटता दिखाई नहीं रही थी। जो इंडिया गठबंधन के घटक हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, कई राज्यों में अलग अलग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ये किस तरह से फलीभूत होता है और मुकाबले किस तरह से बनते हैं, अब आने वाले समय में ये देखने योग्य बात होगी, देखने की जरूरत है। तो उसके लिए इंतजार रहेगा कि वो चुनाव के मतदान की तिथियां आने से पहले पहले वो किस तरह से सीटों का बंटवारा करते हैं और क्या घोषणा पत्र लेकर आते हैं मिला जुला, और भारतीय जनता पार्टी उसका किस तरह से मुकाबला करती है। अभी राजस्थान में जो है भारतीय जनता पार्टी वो सत्ता में आने के लिए पूरी तैयारी, पूरी ताकत लगा रही है। उधर मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है, और कांग्रेस का यह है कि राजस्थान में हम रिपीट करें। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी रिपीट करना चाहती थी, लेकिन वहाँ जो ट्रेंड बना हुआ है 1 टाइम 1, बिल्कुल, तो वो बरकरार रहा। और राजस्थान में भी यही है कि एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि क्षेत्रीय दल कोई है नहीं। लेकिन अब वो राजस्थान के अखाड़े में हरियाणा की पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भी दस्तक दे दी है। अब देखते हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा 25-30 सीटों पर फोकस रहेगा, तो वो किस तरह से और सत्ता की चाबी हम हासिल करेंगे, जैसे हरियाणा में उन्होंने हासिल की हुई है। बिल्कुल, तो अब देखते हैं, वो जो हरियाणा का उनका एजेंडा था वो सरकार, बिल्कुल ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि आपने भी कहा कि एक देश एक चुनाव की चर्चाएं चल रही थी, कमेटी का भी गठन हुआ है, लेकिन फिलहाल एक बार के लिए इन तमाम बातों पर विराम लग गया।
हाँ, एक बार तो ये जो चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर कर दी, अब इन चर्चाओं पर, आशंकाओं, कयासों पर विराम लग चुका है। अब सबको जो है अपने विधानसभा चुनाव की तैयारी में जो भी दल हैं वहाँ दावेदार, उन सबको जुट जाना है। और वो किस तरह से अब मुकाबला करते हैं, इंडिया गठबंधन का ही एक प्रपोजल था, उसको किस तरह से ये फॉर्मेशन में लेकर आते हैं, अभी देखने योग्य बात होगी। बिल्कुल। तो क्या इन चुनावों को साल 2024 में जो आम चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले इंडिया गठबंधन के सामने भी एक इसको क्या समझा जाए, क्या सेमीफाइनल समझा जाए? हाँ, ये तो है कि एक, मैं ये कहता हूँ, ये तो नहीं कहता कि सेमीफाइनल है, लेकिन ये एक परीक्षण तो है ही। बिल्कुल। इसको साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं लिटमस टेस्ट, कि उसमें ये लिटमस पेपर पर ये देखा जाता है कि ये एसिड है, एल्कलाइन है, तो ये इसमें पता चल जाएगा ना ट्रेंड क्या चल रहा है मतदाता ने, केंद्र सरकार के कामकाज। क्योंकि अभी क्या है कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने, जहाँ सत्तारूढ़ भी है या नहीं है, वहां के मुख्यमंत्रियों को एक तरह से चेहरा घोषित नहीं किया, कोई नेता विशेष को चेहरा घोषित नहीं किया। उन्होंने परिवर्तन यात्राएं भी जैसे राजस्थान में निकाली, तो उसको क्षेत्र वाइज अलग अलग नेताओं को जिम्मा सौंप दिया उनके नेतृत्व का। तो कोई एक नेता, कोई एक फेस लेकर जो है वहाँ क्षेत्रीय किसी बड़े नेता का फेस लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। वहाँ सिर्फ ये केंद्र सरकार का कामकाज और पीएम मोदी का ही फेस है, उसको लेकर ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके क्या, जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रयोग है, इसके क्या परिणाम आते हैं। ये है जैसे हरियाणा में पिछली बार जब चुनाव हुआ था और पहले भी चुनाव हुए, तो कोई फेस देखा जाए तो नहीं था, मोदी के नाम पर ही वोट मांगेंगे जी। फिर बाद में मुख्यमंत्री उन्होंने तय किया, फिर मुख्यमंत्री रिपीट कर दिए गए। हाँ। तो हो सकता है कि अब कुछ इस तरह से कोई प्रयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कोई नए मुख्यमंत्री चुने जो स्थापित मुख्यमंत्रियों की जगह, नहीं तो स्थापित मुख्यमंत्रियों के नाम पर ही अगर वोट लेने होते तो फिर उनको सीएम फेस घोषित किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखने की बात है, खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान, दो बड़े स्टेट हैं, तो उनके जो हिंदी बेल्ट में क्या परिणाम होती हैं भारतीय ये कौन है केंद्र की मोदी सरकार के कामकाज और परफॉर्मेंस को लेकर, वो किस तरह से मतदाता देखता है। क्योंकि चुनाव तो मोदी के नाम पर ही होने वाले हैं, क्योंकि वो कोई क्षेत्रीय राजेंद्र वो घोषित ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर देखा जाए, क्योंकि इंडिया गठबंधन नया गठबंधन बनाया है, एक तरह से कोशिश है कि तमाम जो विपक्षी दल मोदी सरकार से या बीजेपी सरकार को नहीं देखना चाहते केंद्र में सत्ता में और अपनी सत्ता चाहते हैं, तो वो तमाम दल जो है एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उनके लिए भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परीक्षा ये होगी इन सभी राज्यों में, और बीजेपी के लिए भी एक तरह से बड़ी चुनौती होगी एक बार फिर से अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो इन राज्यों में भी सरकार बनाने के लिए। लेकिन कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनका ज्यादा प्रभाव आगामी लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला? ये देखिए कि ये हिंदी बेल्ट का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मिजोरम तो है, तेलंगाना है, तो ये अलग तरह के साउथ में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज्यादा प्रभाव रहता भी नहीं है। तो वहाँ तो कांग्रेस किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करती है, ये देखने की बात है। क्योंकि तेलंगाना में तो अभी वहाँ जो दूसरी पार्टी है बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, और जो पहले टीआरएस थी, तो उस तरह से अब देखते कि क्या है। खास तौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो चुनाव परिणाम है उसका असर हिंदी बेल्ट पर जाएगा, और हिंदी बेल्ट से भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें पिक करती है, पकड़ती है। जैसे यूपी एक बड़ा स्टेट है जहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं, तो यूपी पर प्रभाव पड़ेगा। अगर एमपी और राजस्थान के रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आते हैं तो कुछ माहौल वहां बनेगा, क्योंकि योगी सरकार का भी अपना कामकाज है, कुछ और भी माहौल है। तो हिंदी पट्टी का बहुत बड़ा स्टेट है, वो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। और दूसरे वैसे तो पूरे देश में भी फर्क पड़ता है, लेकिन साउथ में जो है भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कम है, और कर्नाटक में वो सत्ता लेकिन कोशिशें तो पूरी की जा रही है वहां पर। अमित शाह जाते हैं तो कहते हैं हैदराबाद को आजाद करवाया था गुजरात के बेटे ने, और अब यहाँ पर विकास करने भी गुजरात का बेटा आया, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वहां पर पहुंच करके। तो लगातार दौरे वहां पर किए जा रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से। नहीं, ताकत तो वो लगा ही रहे हैं। कर्नाटक में भी उनका बहुत प्रयास है किसी तरह से जो है लोकसभा चुनाव में तो फिर अपनी मेजोरिटी हासिल की जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल की जाए। लेकिन अब ऐसे ही है, तमिलनाडु में ये हुआ कि एआईडीएमके इनके से अलग हो गई, डीएमके तो इनके साथ थी नहीं पहले से। तो अब ये है कि देखते हैं क्या असर होता है इन सब चीजों का, कि साउथ में क्या है, साउथ में देखना है। फिर ये किस तरह से प्लस करेंगे, हिंदी बेल्ट से तो इनको सीटें लेनी है। बाकी इधर नॉर्थ ईस्ट भी है जिधर इनकी असम में सरकार है, और उधर जो है और मणिपुर में भी है। तो वहाँ देखते हैं मणिपुर में जो इस तरह की वायलेंस है उसका क्या रिजल्ट आता है।
बिल्कुल। लोकसभा चुनाव में सब मिला जुला होगा। महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है, वहाँ देखते हैं महाराष्ट्र में भी काफी सीटें हैं लोकसभा की, 48 के 48 के आसपास। बिहार में देखते हैं कि अब नीतीश बाबू का कुछ ढुलमुल सा रवैया हो गया, तो अब देखते हैं कि क्या समीकरण वहाँ बनते हैं। ये तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल 5 राज्य हमारे सामने हैं। इनमें आपने बात की हिंदी बेल्ट की, तो हिंदी बेल्ट के सबसे बड़े राज्य यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश, वहां पर बड़ी राजनीतिक उठापटक भी देखने को मिली, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आपको क्या लग रहा है? बीजेपी की सरकार वहां पर लंबे समय से चली, महज 15 महीने का समय कमलनाथ सरकार को मिला, कांग्रेस की सरकार को मिला, लेकिन अब वहां पर किस तरह के हालात हैं? देखिए, अब आज से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को ठीक ठाक मजबूत किया। हो सकता है कि कांग्रेस सफल हो जाए, लेकिन शिवराज सिंह सरकार ने भी तमाम जो है अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कई तरह की फ्रीबीज लिया है, जिस तरह का भारतीय जनता पार्टी में इनकार करती रहती है। लाडली बहना योजना और तमाम तरह के बिजली सस्ती और कुछ ये तमाम तरह की जो है वो योजना है वो लेके आई है। तो शिवराज सिंह सरकार ने पूरी ताकत झोंकी। अब देखते हैं कि वो किस तरह से, एंटी इनकम्बेंसी तो होती है, और जो आपका प्रतिद्वंदी दल है वो भी अपना एजेंडा लेकर आता है, और 15 महीने की जो परफॉर्मेंस है उसको बता रहे हैं कि वहाँ लोग जो है कमलनाथ की सरकार का कामकाज भी लोग पसंद कर रहे थे, और उसके आधार पर ही वो वोट मांगेंगे और फिर आगे के वादे। तो देखते हैं, वहाँ टसल है, वहाँ कड़ा संघर्ष है जी। और अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कई फ्रीबीज की भी, इस तरह की भी घोषणाएं जो है वो की जा रही हैं लगातार, लेकिन यहाँ तक कि सांसदों को भी उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी न किसी तरीके से मजबूत स्थिति में आया जा सके। हाँ, नहीं, ये तो बताया कि वो जो 5 सीटें, 5 जो है केंद्रीय मंत्री थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री और 4-5 नाम है। तो अब देखते हैं, वो इसीलिए है, वो रणनीति के तहत है कि भाई ये सीटें जो है पक्की हो जाएं, जहां वो उनको लगता है कि ये निकाल सकते हैं सीटें, और जहां रिस्क है, जहां उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सीट गंवा सकती है, तो वहां उनको ये केंद्रीय नेताओं को उतारा जा रहा है मैदान में। तो अब देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट आते हैं, तो देखने की बात है। वो नेता भी कुछ ऐसा है कि वो अनिच्छुक से दिखाई दिए चुनाव लड़ने के, उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं था, उनका जो है लिस्ट में नाम डिक्लेयर हो गया। तो देखते हैं क्या आता है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन गुलशन ग्रोवर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, विशेष संवाददाता हमारे साथ। गुलशन, चुनाव आयोग ने आज 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है। अब शेड्यूल जो है वो बता दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। अब दारोमदार पार्टियों ने पहले से ही अपना जोर लगा रखा है, लेकिन किस तरह की स्थिति रहने वाली है और क्या कुछ तैयारियां चुनाव आयोग की? देखिए हितेंद्र, बिल्कुल चुनाव आयोग ने अब 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कर दी है, चाहे वो राजस्थान की बात हो, मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, तेलंगाना की बात हो या मिजोरम की बात हो। हालांकि इन 5 राज्यों में अगर हम सत्ता की बात करें, फिलहाल जो सरकारें हैं, इन 5 राज्यों में बीजेपी की जो सरकार है वो केवल एक ही राज्य में है। इसके अलावा 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। एक राज्य में मिजोरम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के अंदर जो है यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट है, उसकी सरकार है। उसके अलावा तेलंगाना में केसीआर की पार्टी और बीआरएसएस सत्ता में है। अब यहाँ पर बात अगर हितेंद्र बात की जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम, ऐसे में 5 राज्यों में अब चुनाव होने हैं। तो बीजेपी जिस तरह से मिशन 2024 को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी तैयारी में जुटी हुई है। अब इन 5 राज्यों में बीजेपी कितने राज्यों में अपनी सरकार बना पाती है, ये एक बेहद उनके लिए भी चुनौती रहेगी, क्योंकि आने वाला समय फिर लोकसभा चुनावों का है। और लोकसभा चुनाव जब राज्य में अगर जो चुनाव होते हैं तो वहां पर जिसकी सरकार होती है, तो कई बार देखा जाता है कि वहां पर जो है लोकसभा चुनाव का जो असर है वो जरूर देखने को मिलता है। और ऐसे में जो 5 राज्यों में अब चुनाव हैं तो बीजेपी के लिए भी चुनौती है और साथ में कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि आज हमने देखा था कि कांग्रेस में भी दिल्ली के अंदर जो है बैठक हुई, जिसमें सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये बैठक हुई। तमाम बड़े नेता उस समय मौजूद रहे और उन्होंने भी अपनी पूरी तरह प्लानिंग जो है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है पूरी बनाई कि किस तरह से यदि चुनाव आयोग अगर घोषणा करता है चुनाव की, तो किस तरह से पार्टी अपनी पूरी तरह रणनीति बनाएगी। क्योंकि अब उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी जाएगी कि कौन कौन से उम्मीदवार जो है चुनाव में जो है
कूदेंगे और किसको टक्कर देंगे, इन सभी की रूपरेखा जो है पहले से ही तैयार कर ली जाती है हितेंद्र, क्योंकि अलग अलग पार्टी जो है अलग अलग सर्वे जो है अपने तरीके से कराते रहते हैं। और इन 5 राज्यों में पहले बीजेपी ने भी सर्वे जो है कराया है, और क्योंकि इसलिए हितेंद्र आपने भी एक अच्छा सवाल किया था कि इस बार जो है हम देख रहे हैं कि सांसदों को भी इस समय जो है विधानसभा में उतारने की तैयारी जो है की जा रही है, और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है कि इन राज्यों में जो है अपनी सत्ता पाने के लिए, इसीलिए सांसदों को भी जो है टिकट दिया जा रहा है, विधानसभा चुनाव में उन्हें जो है कुदाया जा रहा है। और अब यहां पर भी देखना होगा कि जब अब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, यहां पर भी अब देखना होगा कि कितने लोकसभा कैंडिडेटों को जो है यहां पर विधानसभा में टिकटें मिलती हैं। बेशक 7 नवंबर से चुनाव का जो है ऐलान कर दिया गया है, 7 नवंबर, 17 नवंबर, 23 नवंबर, तो 30 नवंबर, इन सभी डेटों में जो है चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले जो उम्मीदवार है वो किस तरह जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे, कितने मजबूत होंगे, ये सभी पार्टियों के लिए चुनौती है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इनके बीच में कड़ी टक्कर जो है हमेशा रहती है। लेकिन मिजोरम में जिस तरह से मिजो नेशनल फ्रंट है, उसकी सरकार है, क्या वो दोबारा से सत्ता में आती है या फिर यहाँ पर कुछ और देखने को मिलता है। तेलंगाना की बात कर ले, वहां पर भी देखना होगा। तो ये 5 राज्य बड़े अहम रहने वाले हैं हितेंद्र, और इस समय कांग्रेस और बीजेपी 2024 के मिशन को लेकर जिस तरह से लगी हुई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, और ऐसे में जो राज्य के जो चुनाव अब होने का ऐलान आज चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, अब इसमें बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा कि आखिरकार जब चुनाव में जब उम्मीदवारों का ऐलान होगा, जब चुनाव प्रचार होगा, तो दिग्गज जो है इस चुनाव प्रचार में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं, ये देखना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब चुनाव ऐलान की घोषणा तो हो चुकी है, और अब सीधे सीधे अगर बात की जाए कांग्रेस और बीजेपी की, तो 3 राज्यों में सीधे टक्कर होगी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर तीनों ही राज्यों में